evaluate our model. In the same way, regression. अगर हमने suppose rain value is there, means whatever we have predicted that is different from the actual value, and there's a lot of difference. Then this difference is called as the prediction error. Okay, so these are different ways through which we can evaluate our machine learning models. क्लस्टरिंग में कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि हाउ वी विल इवेल्युएट अवर मॉडल, कि हमारे मॉडल ने डेटा से सही सही पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं या सही सही क्लस्टरिंग की है. So generally how we do, we will check one particular cluster, whatever data are there, what is spreadness of these data points in the cluster. ठीक है, कितना स्कैटर है ये पॉइंट, जितने ज्यादा स्कैटर है that cluster is not that much good. ठीक है, so this is one of the way to evaluate clustering algorithms. जिसको हम लोग प्योरिटी भी बोलते हैं. प्योरिटी, if purity is high means in that cluster similar type of data elements we are having, then our clustering model is good. ठीक है, अगर प्योरिटी लो है it means in one cluster we are having different type of data elements, क्योंकि क्लस्टरिंग मॉडल ने सही से क्लस्टर नहीं किया, उसने ऐसा क्लस्टर बना दिया जिसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स डाल दिए. जबकि हम क्या चाहते हैं कि होल डेटा सेट should be divided in few clusters such that each and every cluster is homogeneous. हर cluster में similar type के data elements हो. ठीक है, तो purity, scatter of points in a single cluster, these are possible performance measures for clustering models. एसोसिएशन में हम लोग देखेंगे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, जब ये हम लोग उसी समय देखेंगे, है ना, डिटेल में. अभी when because you don't know the details of this models, so support and confidence are part of that model, तो हम लोग उसी समय देखेंगे. But these are the performance measures through which we evaluate these association rule mining models. And then reinforcement learning, उसमें हम लोग cost of the developing the model, cost of learning the model या rewards के through performance measure करते हैं. So this is one of the very means important you can say aspect of machine learning models. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, we have identified models, we have chosen the model and we learned that इतने से काम नहीं चलेगा. हमें तो ये देखना है कि वो मॉडल हमारा, ठीक है, हमने जो भी मॉडल चूज किया, जो भी मॉडल फिर लर्न कराया, जो भी डेटा हमारे पास था उससे लर्न कराया. The main thing is that we have to check whether this model is correct or not. So performance measure is very very important. हमको वहाँ पे if this performance of this model is high, then only we will say कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अदरवाइज कितना भी हमने मॉडल बना लिया, रन करा के देख लिया, बट हमारा काम तो हुआ नहीं, है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, वी फोकस ऑन द परफॉर्मेंस मेजर ऑफ दैट मॉडल. Then main challenges of machine learning, there are means lot of challenges when we solve any problem using machine learning. There are many, few of them are listed here. How good a model is, हम लोग देखेंगे कि whenever we solve a problem using machine learning, so first of all we choose a model. So how do I choose a model? This is also a very difficult task. ठीक है, that's why I'm telling that it as a main challenges of machine learning, because when we'll see in detail these models and problems, we will see that for some problem you will check that this algorithm is also suitable, another algorithm is suitable, then another. So which algorithm we should choose, model we should choose? It is difficult sometimes, and many times it is difficult. So this is one of the challenge. And in that case, generally we do for all 2-3 models we develop, and then based on the performance we say that which model we will use finally. So this is, but it is costly also when we are solving the same problem using so many models, then it is costly also. So we want a single model that is best for our problem. So that's why this is one of the challenge of machine learning. It is very difficult to identify which model we should choose for a particular problem. How good a model is?
suppose we have developed a model, but it is very difficult. I told you that we will use the performance measures, but sometimes these performance measures are not enough to identify whether your model is good or not. Means you are having error rate less, you are having accuracy high. Even then, when you again test your model on some new data, your model is not that time you are getting your model is not that much good. So it is again, it is another challenge of machine learning. Do I have enough data? So it is again when you are having data set, at that time you are not knowing whether it is enough data to use machine learning to solve that problem or not. समटाइम्स आपके पास डेटा सेट है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ठीक है डेटा सेट है, वी कैन अप्लाई इट, लेकिन जब आपने मॉडल बनाया, उसको इवेलुएट किया, तब आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिली। फिर धीरे धीरे आपको और चीजें समझ में आई, तो लगा नहीं डेटा और होना चाहिए, डेटा सफिशिएंट नहीं है, इतने डेटा से काम नहीं चला। ठीक है, इज द डेटा ऑफ सफिशिएंट क्वालिटी और नॉट? समटाइम्स वी हैव ए लॉट ऑफ डेटा, लेकिन उसमें बहुत सारी एरर्स होती हैं, नॉइजेस होती हैं, या मिसिंग वैल्यूज हैं। So we are having a data, we know that we can apply machine learning models and solve it, but that data is not of sufficient quality. Because of that, again, it is difficult to solve it using machine learning. Then how confident can I be of the results? ठीक है, हमें accuracy बहुत अच्छी मिली, लेकिन बहुत ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने एक्यूरेसी निकाला या एरर रेट निकाला, उसके बेसिस पे अगर आपको 99% एक्यूरेसी मिल रही है, तो आप कहेंगे नहीं मॉडल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई, दिस मॉडल इज वेरी गुड। ऐसा होता नहीं। अभी आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग एल्गोरिथम्स देखेंगे, यू विल सी दैट कि ठीक है एक्यूरेसी मिली, यू कैन से दैट कि बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस मेजर आवर दिस मॉडल इज वेरी गुड। लेकिन समटाइम्स एक्यूरेसी हाई है, लेकिन फिर भी वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हाँ नहीं, ये हम आगे जब आगे के डेटा, फ्यूचर डेटा पे हम अप्लाई करेंगे, दिस मॉडल विल बी गुड। अभी हमारे पास जो डेटा है, हो सकता है वो उसमें 99% एक्यूरेसी मिले, लेकिन in future for new data we may not get that much accuracy. So these are different these are challenges of machine learning. Am I describing the data correctly? This is another challenge. Means whenever we are starting to solve the problem, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब हम, तो हमारे पास डेटा सेट होता है, वी हैव टू एनालाइज दैट डेटा सेट। ठीक है, हम उस डेटा सेट को एनालाइज करके देख पाएंगे कि विच मॉडल वी हैव टू चूज, व्हेन वी विल अप्लाई द मॉडल, वेदर वी विल गेट द मॉडल गुड और नॉट। सो डेटा किस तरीके का है, उस डेटा में बहुत सारे अगर फीचर्स हैं, देन कौन से फीचर्स हमारे लिए यूजफुल हैं, वेदर ये एंड इनकम इज एनफ, or we should take gender or other features of data elements also. So all these things we have to decide कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में जो भी डेटा सेट मेरे पास है, उसमें से हमें कौन कौन से फीचर्स, उस कौन कौन से पार्ट ऑफ डेटा हमें यूज करना है। ठीक है, अभी हम फीचर वर्ड नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज वी विल सी ऑल दीज टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज ऑफ मशीन लर्निंग लेटर। इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा सेट है, डेटा सेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हम यूज करें और कौन सी नहीं यूज करें। So again, this is sometimes with some problems it becomes difficult for us to choose which part of data we should use and which we should leave. क्योंकि अगर हम बहुत सारा डेटा यूज करेंगे, तो फिर आपको आपका कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत सारे आपको चाहिए होंगे, मॉडल लर्निंग टाइम विल बी इंक्रीज। सो व्हाट वी वांट कि कम से कम डेटा यूज हो, बट दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा ना हो कि इररिलेवेंट डेटा भी हमने ले लिया और उसे भी हमने मशीन लर्निंग को लर्न कराने में यूज किया, बिकॉज ऑफ दैट अवर मॉडल इज नॉट दैट मच गुड। उस केस में आपका मॉडल हो सकता है कि अगर आपने इररिलेवेंट डेटा से लर्न कराया, आपका मॉडल उतना अच्छा नहीं होगा। So all these means these are different challenges. हमको जब तक डोमेन नॉलेज नहीं होगी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन से अपने डेटा में से किस इंफॉर्मेशन को हम लें और किसको छोड़ें। फिर हम जिस इंफॉर्मेशन को ले भी रहे हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज अगर हमने कहा कि एज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस,
तो एज डेटा है उसमें हमारे पास एज का डेटा, तो हम एज को एज ए नंबर लें या एज को हम एज एज में जो वैल्यूज हैं उसको हम यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज में रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें so that we will get the best result. It is again not that much clear. ये बहुत पहले से लिखा नहीं है कि किस वेरिएबल की वैल्यूज को किस तरीके से लें, then only we will get the best result. So it will depend on the problem itself, it will depend on the model कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं. So all these are the challenges. उसी समय हमको हो सकता है कि समटाइम्स हम इसे नंबर लेके भी हमने सॉल्व किया, फिर यंग, मिडिल एज, ओल्ड, ये सब लेके इस तरीके से लेबल्स लेके भी सॉल्व किया, देन हमने कंपेयर किया कि हाँ कब हमको एक्यूरेसी अच्छी मिली. सो मीन्स ये डेफिनेटली अगर हम सब तरीके से करेंगे फिर कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा. तो हम लोग शुरू में ही चाहेंगे कि कि हमें क्लियर हो कि किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करें. सो ऑल दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग. इट इज नॉट क्लियर कि हम शुरू में ही जब हमने प्रॉब्लम हमें मिली, डेटा सेट मिला, तो हम कौन सा मॉडल यूज करें. एग्जैक्टली देयर मे बी 2-3 मॉडल्स, मोर देन 1 मॉडल दैट वी विल से दैट कि ये सारे ही फिट बैठ रहे हैं, हम कौन सा करें. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप जितना इसमें मास्टर होते जाएंगे तब आपको चीजें थोड़ा क्लियर होंगी, लेकिन उस समय भी बहुत से मॉडल होंगे जो कि सेम प्रॉब्लम पे लगेगा कि नहीं ये सारे यूज करने चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक ही मॉडल यूजफुल है. फिर उस केस में जनरली वी डू एक्सपेरिमेंट, हम कई सारे मॉडल्स लगाते हैं और फिर उनके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से करते हैं. सो इसका एक do we have enough data and what is the quality of this data, we can see, we will see it in detail. So we can say that कि जो data set हमारे पास है, in that data set we have the example of bad data. So bad data का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि errors हो उसमें या फिर missing data हो, ठीक है. तो insufficient quality of training data. बेसिकली कल हम लोगों ने देखा था कि मशीन लर्निंग में जब भी हम मॉडल करेंगे, सो व्हाटएवर डेटा सेट वी आर हैविंग, वी विल डिवाइड इट इनटू ट्रेनिंग डेटा, है ना. पे हम लर्न कराते हैं एंड देन अपना जो परफॉर्मेंस सॉल्यूशन करते हैं वो हम टेस्ट डेटा पे करते हैं. लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग डेटा बहुत ज्यादा है नहीं. जब हमारे पास सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा है, देन जनरली इट हैपेंस, जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम लोग जब मशीन लर्निंग लगाना रहेंगे, ये विल सी दैट कि आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डेटा नहीं, ट्रेनिंग डेटा नहीं है. जब वो ट्रेन ही नहीं होगा ठीक से, कम डेटा पे ट्रेन कराएंगे तो डेफिनेटली आपका मॉडल अच्छा नहीं होगा या आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा. नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा, you have data but it is in some other representation and you need to change, you have to represent it in some other way, या you don't know कि हम इसे कैसे represent करें so that we can use it on your machine learning model. Poor quality of data, बहुत सारे उसमें जैसे you can say कि वैल्यूज ऐसी हैं जो कि सही नहीं है. जैसे अगर एज लिखी है और वहां पे कहीं पे 104 लिखा हुआ है, तो यू डोंट नो कि पता नहीं ये सही डेटा है कि नहीं है. सही का मतलब क्या है कि इफ इट इज इन मंथ्स और डेज तो हो सकता है सही है, लेकिन बाकी देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स में लिखा है. so this type of errors you may have in your data. yes, sometimes typing mistakes की वजह से आपने 10 ईयर लिखा वो 100 हो गया, या 14 लिखना चाह रहे थे वो 104 टाइप हो गया. सो बहुत सारे इस तरीके के मिस्टेक्स होते हैं. irrelevant features, this is one of the most important example of bad data. कि आपके पास डेटा सेट है और आपको प्रॉब्लम पता है and the whole data set you are having, but in that data set there are so many features, so many information that is irrelevant to your problem. तो अब लेकिन आपको पता नहीं है अभी कि कौन सी रिलीवेंट है, कौन सी irrelevant है. And this is one of the main reason, because of that you may not have your model good model. ठीक है, आपने सारे डेटा पे लर्न करा दिया जबकि उस डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने तो उस पे भी लर्न करा दिया, तो आपका मॉडल उतना अच्छा नहीं मिला. तो हमको देखना होगा कि मीन्स दिस इज वन ऑफ द
चैलेंज, और आप कह सकते हैं कि डेटा सेट में वी शुड check it whether we are having relevant data or not. Then another challenge is example of bad algorithms. Bad algorithms, देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है बट इट इज नॉट दैट कि कोई एल्गोरिदम खराब है. क्यों हम किसी एल्गोरिदम या मॉडल को खराब बोलेंगे? That is based on these two things. Means your model is overfitted the training data. ठीक है, आपके मॉडल ने जो भी आपने ट्रेनिंग डेटा से लर्न करवाया वो बहुत ज्यादा लर्न कर लिया, ट्रेनिंग डेटा को एज इट इज लर्न कर लिया. ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. एंड देयर इज अनदर वे ऑन द अदर हैंड, अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा को लर्न ही नहीं कर पाया. दिस इज कॉल्ड एज द अंडरफिटिंग. In both of these two cases, we say that our model is a bad model or our algorithm is bad algorithm. Algorithm is same. You see, this is not the problem of algorithm. लेकिन हम लोग बोलते हैं this model is not good. क्यों गुड नहीं है? क्योंकि हमारे मॉडल ने बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा लर्न कर, पूरा ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लर्न करने का मतलब समझ रहे हैं. ट्रेनिंग डेटा में जो एरर्स हैं, क्योंकि आपको जब भी डेटा सेट मिलेगा you can't say कि it is a perfect training data in the sense that there is no missing value, there is all relevant information in that. कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ ना कुछ नॉइजेस आपके डेटा सेट होती हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं हम लोग कि ठीक है, जो नॉइज तो बहुत कम है और डेटा सेट हमारे पास बड़ा है. ओके, वी डोंट नो कि कहाँ कहाँ नॉइज है, तो हम पूरे पे ट्रेन कराते हैं. लेकिन हम कब बोलेंगे कि ओवरफिटिंग है? व्हेन योर मॉडल लर्न दीज नॉइजेस आल्सो. ठीक है, उसने इतने पूरे डेटा सेट को इस तरीके से लर्न किया कि जो उसमें नॉइजेस थी उसे भी लर्न कर लिया. ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग. अंडरफिटिंग, जो भी आपका डेटा सेट है उसने उसको ठीक से लर्न ही नहीं किया. ठीक, देन इट इज कॉल्ड एज, मींस तब हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा नहीं है. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इज इट क्लियर? देखिए बताइए हमको, तभी मुझे क्लियर होगा, तब आगे बढ़ेंगे. यस मैम क्लियर है. ओके, सो डिटेल देखते हैं जो अभी हमने आपको बताया. ओवरफिटिंग डेटा, व्हाई वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम. ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है? अभी पहले तो मैं बोला ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा, इसका मतलब क्या है कि द एरर्स दैट यू आर हैविंग इन योर ट्रेनिंग डेटा, या जो भी उसमें नॉइजेस हैं, ये उसको भी लर्न कर लेगा. ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इसने ट्रेनिंग डेटा में जो जो था उसको लर्न कर लिया. बट वी डोंट वांट इट. मतलब वो ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में से चीजें देखे, लेकिन उसमें कुछ जो एरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आउटलेयर्स भी होते हैं. कि ठीक है, हमारा डेटा था मिडिल एज पर्सन्स का, लेकिन उसमें कहीं कहीं पे एक दो डेटा ऐसे हैं जो कि जिनकी एज जो है वो 80-90 के अराउंड वाली थी. तो क्योंकि ऐसा डेटा तो बहुत कम है, दिस इज आउटलेयर्स, आउटलायर्स लोग बोलते हैं. या इसको बोलेंगे these two data are not that much relevant to our problem. लेकिन ये तो हम दो डेटा बोल रहे हैं क्योंकि हम छोटा डेटा मान के चल रहे हैं, पर आपके पास बहुत सारा डेटा था. सो लैक्स ऑफ डेटा इज देयर. उसमें से खुद से मैनुअली ढूंढना कि अच्छा कहीं पे कोई ऐसी एज तो नहीं है, तो जनरली वी डोंट डू दिस. तो उसमें कुछ डेटा ऐसा भी रह गया दैट इज जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि एज बहुत ज्यादा थी. ठीक है, तो हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही से देखे कि हाँ मोस्ट ऑफ द डेटा इज ऑफ मिडिल एज डेटा. ठीक है, तो वो उससे लर्न करे, बाकी वालों को जो नॉइज है, एरर है, उससे ना लर्न करें. बट इफ योर मॉडल लर्न्स दैट आल्सो, देन इट इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. ठीक है, तो ये इसमें हमारा जनरली क्या होता है, अगर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है, देन दिस मॉडल विल परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा. क्योंकि ट्रेनिंग डेटा को तो इसने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है. तो ये आपका ट्रेनिंग डेटा पे जब जब आप रन कराएंगे आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी, एरर रेट बहुत कम मिलेगा. बट when you will generalize means when you will run it on new data, ठीक है,
और न्यू डेटा आज आपके पास कुछ है, कल और मिला, जितना अलग अलग न्यू डेटा रन कराएंगे, देन यू विल गेट नॉट दैट मच परफॉर्मेंस जो आपको मिला था। ट्रेनिंग डेटा पे आपको 98% एक्यूरेसी मिली हो, लेकिन यहाँ पे आपको कभी 55% एक्यूरेसी मिल रही है, कभी 60% एक्यूरेसी मिल रही है, कभी 65, इस तरीके से आपको अलग मिल रही है। ठीक है, इट इज नॉट, इट डजंट जनरलाइज वेल। कब हम बोलेंगे कि जब आप इसे टेस्ट डेटा पे भी अलग अलग टेस्ट डेटा पे रन करा रहे हैं, लगभग ट्रेनिंग डेटा के बराबर मिल रही है। अगर वहां 98% मिली तो कम से कम यहाँ 96, 97, 98% अलग अलग टेस्ट डेटा पे भी मिले। ठीक है, देन वी से आवर मॉडल इज गुड मॉडल। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छी परफॉर्मेंस मिली और टेस्ट डेटा पे भी अच्छी मिली। लेकिन ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है कि व्हेन वी विल रन आवर मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा पे रन करने का मतलब क्या है, लर्न कराना। अभी तो हम लर्न करा रहे हैं, तो उसने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया। लर्न करने के बाद आपने एक्यूरेसी देखी तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। ठीक, बट व्हेन यू आर टेस्टिंग योर मॉडल ऑन टेस्ट डेटा, उस समय आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिल रही है। इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। आपके मॉडल में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है। व्हाई दिस हैपेंस? ये जनरली तब होता है कि आपका डेटा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, आपके डेटा में उतनी नॉइजेस नहीं थी, बट यू हैव टेकन ए वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, यू हैव चूजन ए वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल। अभी हमने आपको बताया ना कि यू हैव ए लॉट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो समटाइम्स वी डोंट नो कि हम कौन सा मॉडल चूज करें। ठीक है, तो हम डेटा सेट को बहुत अच्छे से हमने नहीं देखा, या हम डेटा सेट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल चूज कर दिया, जबकि हमारा डेटा सेट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसका एक एग्जांपल ये है कि आपका डेटा सेट लीनियर है, लेकिन आपने नॉन लीनियर मॉडल चूज कर लिया लर्न कराने के लिए, तो उसने डेटा में जितनी जो भी था वो सब भी बहुत ज्यादा लर्न कर लिया। तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द मॉडल। ठीक है, हम मॉडल्स में वी विल सी दैट कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, इन दोज मॉडल्स वी हैव लॉट ऑफ पैरामीटर्स। तो हम कुछ पैरामीटर्स को छोड़ देंगे, छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज ही ले लें, उन पैरामीटर्स को ना कंसीडर करें। इन दिस वे वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द मॉडल। ठीक है, या अपने मॉडल में हम कुछ कंस्ट्रेंट्स डालेंगे। ठीक है, जब हम कंस्ट्रेंट डालेंगे तो हमारा मॉडल सिंपल होगा। जैसे ये क्लियर हो रहा है ना कि कोई भी मॉडल है, अगर वो जनरलाइज मॉडल है देन इट इज कॉम्प्लेक्स मॉडल। अगर हम उसमें थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रेंट डालते रहें कि जैसे जैसे हम लोग कहें ना कि हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, फिर हमने उसमें कंस्ट्रेंट डाल दिया, नहीं वो नंबर इंटीजर ही हो सकता है, और कंस्ट्रेंट डाल दिया वो नंबर 100 से कम हो सकता है, और कंस्ट्रेंट डाल दिया वो इवन नंबर्स होंगे और 100 से कम होंगे। तो हमारा वो प्रॉब्लम सिंपल होती जा रही है ना, कम नंबर के लिए ही वो हमें चेक करना है, रन करना है एंड सो ऑन। तो अगर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल चूज कर लिया था, तो हम उसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे बाय कंस्ट्रेनिंग द मॉडल। ठीक, अगर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, हाउ विल वी आइडेंटिफाई वेदर दिस ओवरफिटिंग इज देयर और नॉट? अभी हमने बताया, जस्ट अभी बताया, when you will say that you are using machine learning model and there is a overfitting problem. बताइए, कोई एक जने बताइए, कैसे आपको पता चलेगा कि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है? मैम मतलब जैसे स्टार्ट में मतलब जब हमारे पास स्मॉल इनपुट ऑफ डाटा है तो हम देख रहे हैं कि आउटपुट हमारे अच्छे आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। फिर अगर हम फिर से कुछ इनपुट डाटा डाल दे रहे हैं तो अगर हमारे आउटपुट फिर से मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और जो कि पहले के कंपैरिजन में मतलब अभी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन हो गई है, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा ओवरफिटिंग हो गई है मतलब डाटा में। हाँ, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी बढ़िया है, लेकिन टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी बढ़िया ना हो। बार बार अलग अलग टेस्ट डेटा पे हमने टेस्ट कराया, एक्यूरेसी नहीं अच्छी है, लेकिन ट्रेनिंग डेटा पे जब भी रन करा रहे हैं
जब हमने ट्रेनिंग डेटा पे किया था तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, है ना। जैसे हमने, अगर हम जो कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लें कि हमारे पास जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो कैट, लायन और डॉग की है और हमने उस पे लर्न करवा दिया, तो जो भी पिक्चर्स हमने 1000 पिक्चर्स दी थी, उन 1000 भी टेस्ट करना है, जहाँ कैट की पिक्चर है उसको इसने डॉग आइडेंटिफाई किया, लेकिन जब हमने न्यू पिक्चर्स दी कैट, डॉग और लायन की, वो अलग हो गया, तब वो एक्यूरेसी सही नहीं आई, उसने कैट को लायन बता दिया, लायन को कैट बता दिया, ठीक है। तो लेकिन ट्रेनिंग डेटा पे हम देखा था हमने, तो वहां सही बताया, तो मतलब उसने पूरा जो भी डेटा सेट था उसको बढ़िया से लर्न कर दिया, बहुत अच्छे से, ओवर लर्निंग हो गई, ओवर फिटिंग हो गई, ठीक। तो the reason behind that is that we have used some complex model, ठीक है। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम इतनी इजी नहीं थी, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स मॉडल, हाँ जैसे इसमें ओवर फिटिंग एग्जिस्ट करती, लाइक ओवर फिटिंग में ज्यादा डेटा दे दो, इनएक्यूरेट डेटा, हम लोग डेटा सेट, तो मैम ऐसी अंडर फिटिंग भी होगा क्या? हाँ, अंडर फिटिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा दोनों प्रॉब्लम होती है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ओवर मॉडल था, आप ट्रेनिंग डेटा तो लर्न करनी है, लेकिन ट्रेनिंग डेटा वो नहीं देगा, ठीक है। ट्रेनिंग पे तो देगा, क्योंकि ट्रेनिंग में वो एरर वाले भी जहां जहां नॉइजेस हैं वो भी डेटा है ही उसमें, और उसने वही लर्न किया है, तो वो सही देगा रिजल्ट। लेकिन टेस्ट डेटा में फिर जो है ना कि नॉइजेस भी हो, है ना, उसमें कम नॉइजेस हो सकती हैं या दूसरे तरीके की नॉइज होगी, वहां पे वो सही से नहीं देगा, ठीक। अंडर फिटिंग कब होती है? जस्ट द अपोजिट ऑफ ओवर फिटिंग, कि इसने ट्रेनिंग डेटा को ठीक से, ट्रेनिंग डेटा को भी लर्न नहीं किया, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा को ठीक से लर्न ही नहीं कर पाया। जैसे आपके पास जो भी डेटा था, ठीक है, उसमें कुछ तो नॉइज भी थी, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग डेटा है उसे भी उसने ठीक से लर्न नहीं किया, एंड देन दिस हैपेंस, योर डेटा इज मोर कॉम्प्लेक्स बट यू यूज्ड द सिंपल मॉडल, ठीक है। आपका डेटा हो सकता है नॉन लीनियर डेटा है, लेकिन आपने लीनियर मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर लिया, तो डेफिनेटली अगर डेटा से हम उस तो मॉडल रन और टेस्ट योर डेटा ऑन ट्रेनिंग डेटा इटसेल्फ। ट्रेनिंग डेटा में भी आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने लर्न ही नहीं किया ठीक से, ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी बढ़िया नहीं मिल रही है। फिर डेफिनेटली वो जब आप टेस्ट डेटा पे करेंगे तब नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तो नहीं मिलेगी। इट विल बी रैंडम ओनली, कि हो सकता है कभी मिल जाए कभी ना मिले, क्योंकि वो लर्न ही नहीं किया है टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सिंपल मॉडल यूज किया जिसकी वजह से वो लर्न ही नहीं कर पाया था, सो वी विल सेलेक्ट, इन दिस केस वी शुड सेलेक्ट more powerful model, ठीक है। we should choose other parameters of that model also, we should consider other remaining parameters also जो हमने नहीं किए थे, मतलब हम अपने मॉडल को और कॉम्प्लेक्स करेंगे so that वो ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर पाए ठीक से। फीडिंग बेटर फीचर्स टू लर्निंग एल्गोरिथम, फीचर्स जो इनपुट फीचर्स हैं, ये तो आपका दोनों केस में रहेगा, ये तो हर केस में रहता है कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल उतना अच्छा होगा, उसमें अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम तब कम होगी व्हेन वी विल एज एन इनपुट वी विल गिव द बेटर फीचर्स, मींस मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और मोर रिलेवेंट डेटा सेट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, एज एन इनपुट। जो जैसे अगर हम कहें, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी आर हैविंग सम पर्सन्स डेटा, ठीक है, पर्सन्स का डेटा है हमारे पास में, उसमें एज है, एड्रेस है, सैलरी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, उस एमएससी किया डिग्री है उसकी, ठीक है, पीजी डिग्री है, और वेदर ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट और एनी अदर गेम, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है।
और हमारी प्रॉब्लम है कि हम इस डेटा से लर्न करा के वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर द पर्सन will spend would like to spend more in the weekend. ठीक है, आप जब वीकेंड आता है तो वीकेंड पे जनरली लोग स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं या जो भी है ना, छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हों who will not like to do all these things. They want to मतलब वो बहुत खर्चीले नहीं है, वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, वो नॉर्मल डेज में जैसे रहते हैं वो वीकेंड पे भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी, उनको ज्यादा पार्टी वार्टी नहीं करनी। तो हमें यही प्रेडिक्ट करना है कि बेस्ड ऑन दी पर्सन्स इंफॉर्मेशन। अब उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर्सन का नेम है, पर्सन की एज, कौन सा प्ले वो लाइक कर रहा है, उसकी क्या है। सो दीज आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेटा सेट। कौन से फीचर्स हमारी इस प्रॉब्लम के लिए यूजफुल होंगे और कौन से नहीं होंगे। कौन सी प्रॉब्लम है, वी वांट टू प्रेडिक्ट कि कौन से पर्सन्स इनमें से वीकेंड में खर्च करना पसंद करेंगे, कौन से नहीं। बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास? नेम, बताइए। मैम समझ नहीं आया है। नहीं आ रहा है, अच्छा फिर से देखिए, एक्चुअली वो हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, फिर से एग्जाम्पल समझिए। हमारे पास डेटा क्या है, डेटा सेट क्या है, डेटा सेट पर्सन्स का डेटा सेट है। हर एक पर्सन की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी सैलरी है, उसका एड्रेस है, वो कौन सा गेम प्ले पसंद करता है, ठीक है, और उसकी पीजी डिग्री क्या है, पीजी उसने किया भी है कि नहीं है, वो सब है, ठीक। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक। आप इस डेटा सेट से आप क्या लर्न कराना चाहते हैं, लर्न कराने के बाद क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आपका मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल बता दे कि इनमें से कौन से पर्सन्स वीकेंड पे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं और कौन से पर्सन्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से फीचर्स आप अपने मॉडल में यूज करना चाहेंगे, कौन से फीचर्स मशीन लर्निंग मॉडल में हेल्पफुल होंगे। नेम हेल्पफुल होगा, नेम क्या बताएगा? नेम, सैलरी एंड एज और फेवरेट गेम। फेवरेट गेम भी है, फेवरेट गेम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गेम से क्या मतलब है, हमारा फेवरेट गेम जो है वो चेस है, आपका लूडो है, तो कैसे क्या वीकेंड पे तो हम चाहे कोई भी खर्चा कर सकता है। बट एज एंड सैलरी डेफिनेटली, ये दो करेक्ट बताया आपने, एज एंड सैलरी, दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हियर दैट विल डिसाइड कि वो पर्सन वीकेंड पे खर्च करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हम अपने मॉडल में खाली अगर यही दो फीचर देंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये दो फीचर इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, यू विल फीड बेटर, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच फीचर्स आर इंपॉर्टेंट टू योर प्रॉब्लम। आप खाली उन्हीं फीचर्स को एज एन इनपुट दीजिए, एज ए डेटा सेट दीजिए व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर डेटा सेट, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन रिड्यूसिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन द मॉडल, क्योंकि हमने बहुत सिंपल मॉडल यूज किया था, बिकॉज ऑफ दैट मॉडल हैज नॉट लर्न प्रॉपरली द ट्रेनिंग डेटा और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम हुई। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को और जनरलाइज करेंगे, उसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसमें अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स थी उनको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स तो आपके मॉडल को और सिंपल बनाती है ना, तो हम उनकी कंस्ट्रेंट्स को हटा के उसको और जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने से हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा एंड देयर आर चांसेस दैट कि जब वो कॉम्प्लेक्स होगा तो आपके कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को लर्न इजीली कर पाए। क्लियर? क्लियर द प्रॉब्लम ऑफ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए कि कब हम अंडरफिटिंग बोलते हैं,
कि हमारा मॉडल में अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है और कब ओवर फिटिंग की है। नाउ there's a means term that is used to check the performance or to evaluate the machine learning model, जिसमें bias and variance trade off कहते हैं। मतलब क्या है, आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल जब बनाएंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या यूज करेंगे, then there may errors, आपके मॉडल में जो भी एरर्स होगी, these errors are generally, there are two types of errors, bias and variance। ठीक है, ये दो तरीके की एरर्स होती हैं, bias and variance। and we when we are trying to reduce bias, तो variance बढ़ता जाता है, and when we try to reduce variance, bias will be increased। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि bias हम रिड्यूस करें तो variance भी रिड्यूस हो जाए, या variance रिड्यूस करें, वेरिएंस एरर को रिड्यूस करें तो बायस एरर भी रिड्यूस हो जाए। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन ट्रेड ऑफ बिटवीन बायस एंड वेरिएंस। ऐसा ना हो, मतलब मॉडल हमारा कब अच्छा माना जाता है, जब बायस और वेरिएंस दोनों ऐसा ना हो कि बायस तो 0 हो गया लेकिन वेरिएंस बहुत ज्यादा है, उस केस में आपका मॉडल अच्छा नहीं होगा। वेरिएंस 0 हो गया लेकिन बायस बहुत ज्यादा है, वो भी आपका केस अच्छा नहीं है। जब दोनों यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज एंड दोनों को बहुत ज्यादा, दोनों को हम 0 कर नहीं सकते, बट अप टू सम लेवल हम वहां तक कर लिए, देन वी विल स्टॉप देयर, और वो दैट मॉडल विल बी द बेस्ट मॉडल। सो प्रेडिक्शन एरर्स या क्लासिफिकेशन एरर्स जो होती हैं, उसमें उस एरर में दो पार्ट होते हैं, बायस एंड वेरिएंस, and we have to maintain this means there is a trade off between bias and variance। क्या होता है bias and variance? bias दोनों, ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, एक ओवरफिटिंग और एक अंडरफिटिंग से ही रिलेटेड है। मतलब देखिए क्या होता है ना। बायस क्या बताता है? बायस बेसिकली इज गिविंग, बायस की डेफिनेशन अगर हम देखें, देन इट इज डिफरेंस बिटवीन योर प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो बायस इज हाई अगर ये डिफरेंस हाई है। ठीक है, तो and generally bias we talk in when we means we are means checking this difference for training as well as test data। दोनों ही के केसेस में अगर predicted value और actual value के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, then bias is high। तो आप बताइए इसमें अंडर फिटिंग होगा कि ओवर फिटिंग होगा, किसकी प्रॉब्लम है? इफ बायस इज हाई तो ये अंडर फिटिंग है कि ओवर फिटिंग है? हम आपको दिस इज अंडर फिटिंग, क्योंकि आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा है, तो ट्रेनिंग डेटा पे भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसने ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से लर्न नहीं किया, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग। ठीक, वेरिएंस हम किसको बोलते हैं? वेरिएंस मींस कि जब हम टेस्ट डेटा पे रन कराएंगे, ठीक है, हमने अपने मॉडल को लर्न करा लिया अच्छे से, उसके बाद अब हम अलग अलग टेस्ट डेटा पे रन करा रहे हैं। किसी टेस्ट डेटा पे कब कुछ रिजल्ट आ रहा है, मतलब कुछ एक्यूरेसी आ रही है, किसी पे कुछ और एक्यूरेसी आ रही है, या इसको नहीं, बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि आपने जिस ट्रेनिंग डेटा पे, एक बार आपने कुछ ट्रेनिंग डेटा पे लर्न कराया, ठीक, और फिर आपने टेस्ट डेटा पे रन कराया, कुछ एक्यूरेसी मिली। अगली बार ट्रेनिंग डेटा आपने चेंज कर दिया, ठीक, ट्रेनिंग डेटा चेंज कर दिया और फिर आपने उसी टेस्ट डेटा पे रन कराया, एक्यूरेसी कुछ और मिल गई। सो यू आर गेटिंग वेरिएंस ऑन द टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा पे बार बार अलग, सेम टेस्ट डेटा है बट यू आर गेटिंग डिफरेंट एक्यूरेसीज बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि हम ट्रेनिंग डेटा चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? अगर हम ट्रेनिंग डेटा चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मॉडल अच्छा है तो ठीक है, दोनों ही डेटा, जो भी ट्रेनिंग डेटा हमने लिया, दैट इज पार्ट ऑफ अवर डेटा सेट, दैट डेटा सेट इज रिलेवेंट टू अवर प्रॉब्लम। तो ठीक है, हम कोई भी ट्रेनिंग डेटा लें, मॉडल तो अच्छे से लर्न होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रेनिंग डेटा पे लर्न कराया, फिर टेस्ट कराया, टेस्ट डेटा पे तो कुछ एक्यूरेसी मिल रही है टेस्ट डेटा की, दूसरे ट्रेनिंग डेटा पे लर्न कराया, फिर जब हमने टेस्ट डेटा पे चेक किया तो और एक्यूरेसी मिल रही है, सेम टेस्ट डेटा पे किया। इट मींस क्या हुआ यहाँ पे? कौन सी प्रॉब्लम है? ओवर फिटिंग है कि अंडर फिटिंग है? ओवर फिटिंग हो रही है ना। तभी तो जब पहले ट्रेनिंग डेटा पे हमने लर्न कराया, इसने इतना ज्यादा अच्छे से लर्न कर लिया, इसकी एरर्स को भी लर्न कर लिया कि जब हमने टेस्ट डेटा पे लर्न कराया कुछ मिली एक्यूरेसी हमको,
और जब हमने टेस्ट डेटा चेंज कर दिया तो अब इसने इसकी एरर्स को लर्न कर लिया, सेम टेस्ट डेटा पे रन कराया, कुछ और एक्यूरेसी मिल रही है, मतलब कुछ और रिजल्ट ये दे रहा है। तो मतलब इसने पहली बार में इस ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग मॉडल बन गया आपका। तो टेस्ट डेटा के लिए उसने कुछ रिजल्ट्स बताए। अब आपने ट्रेनिंग डेटा चेंज किया तो मॉडल ने कुछ और ही लर्न कर लिया, है ना, इस ट्रेनिंग डेटा को लर्न किया, और टेस्ट डेटा पे टेस्ट डेटा सेम है लेकिन कुछ और रिजल्ट बता रहा है। इट मींस यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमें मॉडल हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओवरफिटिंग वो कर ले रहा है मॉडल हम थोड़ा। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस मींस सेम टेस्ट डेटा पे यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इज इट क्लियर? बायस यस मैम। ठीक है, तो ये बायस और वेरिएंस इज रिलेटेड टू ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ठीक है, दिस इज इनके इफ बायस एरर इज हाई देन अंडरफिटिंग प्रॉब्लम इज देयर, इफ वेरिएंस इज हाई देन ओवरफिटिंग इज देयर। ठीक है, तो सेम है, मतलब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम समझ में आ गई तो बायस और वेरिएंस वही चीजें उससे रिलेटेड है और वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो बायस हमने बोला कि व्हेन अंडरफिटिंग इज देयर। ठीक है, अंडरफिटिंग जब है, क्यों अंडरफिटिंग है इसलिए ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी आपका एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है, आपको एरर ज्यादा मिल रही है। ये वाली प्रेडिक्टेड एरर, मतलब किसी भी जब आप ट्रेनिंग सेट पे भी रन करा रहे हैं आपको एरर मिल रही है, तो दिस इज बायस। और तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग कब होता है? अंडरफिटिंग तब होता है जब हम लोग इजी मॉडल्स यूज करते हैं। डेटा सेट आपका कॉम्प्लेक्स है बट यू आर यूजिंग ए वेरी सिंपल मॉडल, तो वो ठीक से लर्न ही नहीं कर पाया, है ना, ठीक से लर्न ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मॉडल इजी है। सो जनरली लीनियर एल्गोरिथम्स, जो लीनियर सिंपल एल्गोरिथम्स है, दीज आर ऑफन हैविंग हाई बायस। ठीक है, इसमें हाई बायस होगा विच मेक्स देम लर्न फास्ट। वो लर्न तो बहुत जल्दी कर लेंगी लेकिन वो ठीक से लर्न नहीं करेंगी, है ना। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ अंडरफिटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट बायस एरर विल बी हाई। ठीक, इन कंट्रास्ट नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स जैसे डिसीजन ट्री वगैरह जो हैं, वो एल्गोरिदम्स हैव लो बायस। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं, तो वो जो है वो जनरली डेटा को ठीक से लर्न कर पाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं। ठीक, तो उन केसेस में बायस लो होता है। लेकिन उल्टा, जस्ट उल्टा भी हो जाता है फिर कि वहां पे जो नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स है उनके लिए वेरिएंस हाई हो जाता है। वेरिएंस हाई मींस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मॉडल अगर कॉम्प्लेक्स है देन इट विल लर्न योर डेटा। बहुत सिंपल था लेकिन मॉडल कॉम्प्लेक्स है तो इट विल लर्न द नॉइसेस ऑफ द डेटा सेट आल्सो। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। पहली बार में थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा बट व्हेन यू विल रीड दिस पीपीटी अगेन एंड अगेन, आपको चीजें, और जो अगर अभी हमने बोला कुछ समझ में आ गया होगा एटलीस्ट, मतलब अभी जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ गया लेकिन आप बार बार भूल जाते होंगे कि क्या है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, देन आफ्टर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है, अगर तब भी समझ में ना आए तब फिर पूछ लीजिएगा। ठीक, ये अभी हम छोड़ दें, ठीक है, कल इसको डिस्कस करेंगे जब आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इसको छोड़ दें, ये टाइम हो ही गया है ना, टाइम हो गया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसको रिवाइज कर लीजिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर, क्योंकि इसके बाद फिर नया टॉपिक आ ही जाना है। देखिए ये हम सिंपल है तो हम आज ही डिस्कस कर ले रहे हैं। जनरली जैसे जैसे हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं या मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं, मॉडल कॉम्प्लेक्स चूज करते जा रहे हैं, आपका बायस एरर कम होगी, बायस एरर कम होगी और वेरिएंस आपका बढ़ने के चांसेस है ना, वेरिएंस एरर बढ़ती जाएगी। तो व्हाट वी वांट, मतलब आपकी जो एरर होती है वो तो इन दोनों का सम होता है। ठीक है, बायस एरर, किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, please don't disturb like this. So एक term of में,
So when you and कल देखेंगे ये ऐसा इतनी लेकिन इनका काम बहुत ट्राई Any doubt you can ask also. एक second मैं call ही करूँ